Hello everyone, this is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Anu S. Chauhan ma'am on the platform of Ankakshar Miracles as a guest. She is one amongst the 108 co-authors of our anthology books titled as My Marriage, Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. Hello ma'am, very good afternoon. It's a very sunny day today and how are you doing? Thank you so much. I'm doing very well, and I hope that you all are doing great as well. That's great. So before moving on and have a wonderful day ahead, we'll take the blessings of God. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ. So before moving ahead, I will share the screen sharing. Just let me know, ma'am, that are you able to see my screen? Yes, I am. Yes. So this is about ma'am. She's an educationist, parenting coach, teacher's trainer, early childhood learning coach, strategy management and operations, curriculum developer, ECL, counselor, a novice writer. And this is the beautiful picture with the books. She is very happy. Her certificate, both the books. And this is the beautiful quote that we have taken out from My Marriage Bliss versus Curse. The mantra of happy married life is I water you, you water me. We do not drain each other, we grow together. I hope you're able to see the screen, ma'am. Yes, I am able to see the screen. Yes, and this is the beautiful cover of Seven Lee of Life, Anthology of Wisdom by 108 Visionaries, Learning, Earning, and Expectation. I would also share with you all the cover of My Marriage. Just 1 minute. Just give me 1 minute. Here's the beautiful cover My Marriage Bliss versus Curse, an anthology of 108 co authors. So I hope you were able to see the screen sharing. Actually, there was a network issue, so I took longer to share with you all the My Marriage Bliss versus Curse. And moving on, actually आर्टिकल रीड करके ना मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला मैम. बेसिकली अगर आपको बोलूं कि वही जो 1 and 1.5 पेज का जो भी आर्टिकल था, बट इट वॉज विथ सो वेरी डीप थॉट्स. ऑल्सो मैम का एक्सपीरियंस भी 19 ईयर्स का है, सो आई हैव रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट आर्टिकल. सो ऑडियंस व्यूअर्स लिसनर्स भी आज बहुत कुछ सीखेंगे, आई प्रोमिस टू यू ऑल. एंड विद दैट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मैम ने स्टार्टिंग में बताया है, यू से दैट nowadays marriage is considered negative by youngsters in today's era as they perceive it something that will take away their freedom. It's look like a bondage or a chain tied up with responsibilities. So we'd be highly pleased to understand it on more detail from you since you're a parenting coach too. Over to you, ma'am. Thank you. In that context, when I got this topic, and there were so many thoughts which got unsettled when I was trying to write something and compile a page article under this specific topic. And when we are meeting so many children these days, abhi ka generation is like they have access to everything. And the one thing they do not or are not ready to give up is their freedom. Marriage is a long-term commitment, and it's an institution जिसमें कि आपको बहुत गिव अवे भी करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि शादी आप 3 दिन के लिए कर रहे हो या 3 महीने के लिए कर रहे हो या 3 साल के लिए कर रहे हो. एक लॉन्ग टर्म जब आप कमिटमेंट किसी चीज के लिए देते हो तो आपको
अपना 100% देना पड़ता है उस किसी भी रिलेशनशिप में। और शादी को लेकर जब मैं नए बच्चों को से बात करते हैं हम, तो जो सबसे पहला डर और फेयर उनके जहन में आता है वो ये है कि इतना लंबा कमिटमेंट किसी एक इंसान के साथ करना, क्योंकि शायद वो उस कमिटमेंट को उस लेवल पर लेते हैं कि चलो जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक हम कमिटेड हैं, या हमारा इतना समय है तो हम इतने समय के लिए कमिटेड हैं। इसका एक और हम पॉइंट ऑफ व्यू ये देख सकते हैं कि इस पिछले 30 to 40 years के एरा में हमारी सोसाइटी काफी शिफ्ट हुई। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस 30-40 years बैक अगर हम बात करें तो फीमेल्स वर नॉट दैट एम्पावर्ड एंड दे वर नॉट फ्री टू डू सर्टेन जॉब्स एंड कोर्स हम बात कर सकते हैं। जो धीरे धीरे जो ये शिफ्ट आया है पिछले 30-40 years में, उसमें फीमेल्स इतनी empower हुई, दे रियलाइज दैट जॉब्स आर नॉट जेंडर बायस्ड, वेदर इट्स अ हाउस होल्ड जॉब और यू आर गोइंग आउट टू वर्क एंड अर्न मनी। अब वुमेन जब इन सब चीजों को, इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रही थी, उसी बीच में एक और एम्पावरमेंट या लिटरेसी या लर्निंग फॉर्म हो रही थी, वो थी मेल empowerment to understand that jobs are not gender biased, whether they are household या बच्चे की टेक केयर करना, या बाहर से फाइनेंशियल आप सपोर्ट लेकर आ रहे हो। तो जहां वुमेन समझ रही थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, वहीं बीइंग अ मैन ऑफ द हाउस, males were also learning that it is okay to participate in everything, whether it's your family or earning money. A big chunk कह सकते हैं हम कि of male society, they became literate of this, that okay, it is fine and we are equally responsible. बट कुछ ऐसा भी ग्रुप अभी भी रहा है जो अभी भी इस चीज की एक्सेप्टेंस में नहीं आ पा रहे हैं कि इट इज ओके इफ वी आर डूइंग घर के काम और साथ साथ हम बच्चों के लिए भी एक सपोर्टिंग सपोर्ट बन रहे हैं अपनी घर की फीमेल्स के साथ। तो जो ये शिफ्ट चल रहा था, उस शिफ्ट में जितने भी हमारे अप्स एंड डाउन्स रहे वो ज्यादातर फेस किए उस ड्यूरेशन के बच्चों ने। उन्होंने वो सब एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, एंड दे एंड अप समवेयर, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहती हूँ, बट उनका जो ट्रस्ट उस रिश्ते से टूटा, वो शायद उसी प्रोसेस को अभी भी अमेंड कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं अभी के जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्होंने जिन 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 रिश्तों में दरारें देखी हैं, शायद उनके लिए किसी भी एक रिश्ते के साथ कमिट होने का जो इश्यूज उनके अंदर क्रिएट हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू अडेप्ट एंड वर्क ऑन दोज इश्यूज। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि इस 30-40 साल के जो ट्रांजिशन पीरियड में अब जो हमारा यूथ है या जो अब बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं, वो ऐसे पेरेंट्स के साथ ग्रो हो रहे हैं। आई मीट लॉट ऑफ यंग पेरेंट्स जहां ये चेंजेस हम observe किए हैं कि बोथ पेरेंट्स आर इक्वली इन्वेस्टेड इन अ चाइल्ड्स लर्निंग जर्नी, जो बचपन से ही शुरू हो जाती है। फिर चाहे उनके स्कूल की पीटीएम हो, चाहे उनका एकेडमिक रिलेटेड चीजें हो, बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लेगा से लेकर कौन से कॉलेज तक जाएगा, मैंने देखा है घर में पेरेंट्स दोनों ही, चाहे मदर और फादर आर इक्वली इन्वेस्टेड। और शायद ये वाली वो जनरेशन होने वाली है जिन जो ये देखकर बड़े हो रहे हैं कि शादी इज अ इंस्टीट्यूशन जहां दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मुझे लगता है ये एरिया है जो हम सबको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना कि शादी शादी सिर्फ एक चीज नहीं है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हम जो होते हैं वो हम अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में फॉर्म हो रहे हैं। लाइक जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसी से हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है।
तो वट एवर वी आर फेसिंग इन आवर चाइल्डहुड, जो भी हमारे गैप्स रह जाते हैं, वो हम शायद बड़े होके उन्हीं पे काम नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एरिया है जिसपे मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी हमें काम करना पड़ेगा कि हमारी आने वाली जनरेशन ये ना भूले कि मैरिज इज अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन, एंड इट इज नॉट द नीड, बट इट इज समथिंग यू डू, लाइक यू डू इट फॉर योर सेल्फ। यू नीड टू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ, एंड फॉर दैट मैटर हम शादी करते हैं किसी से, और हम अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दुनिया बनाते हैं। और वही मैम ने अपने आर्टिकल में आगे भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। एवरीवन नीड्स वन और द अदर पार्टनर। हर किसी को चाहिए होता है पार्टनर का साथ, और चाहिए होता है कि मैं भी किसी से कुछ शेयर करूं। सो इट्स नॉट ओनली द फिजिकल बट इट्स मोर अबाउट इट। सो वो भी मैम ने अपने आर्टिकल में बताया है। सो यू ऑल नीड अ पार्टनर इन योर लाइफ सम और द अदर डे। इसे रियलाइज करने में कोई कोई अपनी एज पास आउट कर देता है, बट आपके आर्टिकल में इसे स्टार्टिंग में ही पढ़ के ही मुझे ना मतलब वो आया। और बाद में आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, आगे हम अभी और हम जानेंगे आपसे। जैसे आपका मैंने बाद में टाइटल भी रीड किया था स्टार्टिंग में, तो लव इज नेवर इनफ। मुझे लगा ये टाइटल तो बहुत डीप लग रहा है, इसमें इमोशंस भी काफी हैं। तो प्यार तो जितना करो जिससे भी, वो ऐसे ही होता है कि हाँ कोई ना कोई मेरी लव और केयर करता ही रहे। बट बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे जानेंगे कि क्या रहा कि आपने यही टाइटल क्यों चूज किया। मुझे ऐसा लगता है प्यार तो हर चीज की शुरुआत है और अंत भी है। मतलब अगर हमें हमारा जो कंपैशन होता है अंदर से, वो अगर किसी इंसान के प्रति है, किसी सब्जेक्ट के प्रति है, या हमारा पढ़ाई में है या जॉब में है, वो हमें हमेशा फुलफिल्ड फील कराता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शादी की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज एज एन लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, तो मुझे लगता है प्यार एक उसकी जरूरत जरूर हो सकता है, बट प्यार सब कुछ नहीं होता है, बिकॉज शादी टेक्स अ लॉट। मतलब अदर देन लव, इट टेक्स लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, it takes lot of adjustments, it takes आपको बहुत अपोलोजाइज नेचर ओपन रखना पड़ता है। आप यू कैन नॉट कीप योर ईगो व्हेन यू आर डीलिंग विद सर्टेन सिचुएशंस। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको सेल्फलेसनेस चाहिए होती है व्हेन यू आर इनटू अ मैरिज, क्योंकि शादी सिर्फ प्यार से तो नहीं चलती है। क्योंकि शादी जब हम बात कर रहे हैं, तो इसी ड्यूरेशन में, जब जैसे जैसे आपकी मैरिज बढ़ रही है आगे, आप एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हो, आप एज लाइफ ग्रो कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे हैं, आपकी एज बदल रही है। और जब हमारी एज चेंज होती है, तो हमारे बहुत सारी चीजें हम अपने अंदर रख लेते हैं जो बहुत अच्छी होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन हो जाते हैं, बट साथ साथ बहुत सारी चीजों में हम चीजों को हमारी कम भी होती जाती है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। विद एज हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो शादी के लिए तो हमें इन सब पैरामीटर्स को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ प्यार की, तो थोड़ा सा प्यार के अलावा बहुत सारी चीजें होनी चाहिए एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जब हम सक्सेस की बात करते हैं, तो शादी की सक्सेस इस चीज पे बिल्कुल भी ड्रिवन नहीं होती है कि यू आर ऑलवेज गुडी गुडी, या आपके कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं, या आपके कोई डिसअग्रीमेंट्स नहीं है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक डिसअग्रीमेंट्स होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप एक ही तरीके से झुकते रहेंगे, तो वो पेड़ कहते हैं ना कि एक तरफ झुकेगा तो वो उधर टूट जाएगा। तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा शादी में। तो डिसअग्रीमेंट्स होना बहुत अच्छी बात है, दैट यू आर हैविंग अ गुड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एंड नॉट हियर आई ओनली एम लव बट टॉकिंग कम्युनिकेशन, अबाउट ट्रस्ट, बोथ द अंडरस्टैंडिंग। पार्टनर्स इन द मैरिज। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल आई बिल्कुल, ये थिंक सब चीजें तो बहुत ही देर। जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज ऐसी चीज है जिसको हम, आई एम सॉरी, द नेटवर्क वेंट ऑफ। नेटवर्क, हाँ जी। नेटवर्क इशू हो रहा था, दैट ओनली आई वाज सेइंग, थोड़ा। बट नाउ इट्स स्टेबल। जी। So yes, everything is necessary, not only love. And
सो आपने उसमें ये भी बताया कि हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर इन योर आर्टिकल, सो कुड यू शो सम लाइट और पाथवे टू इट, टू अवर व्यूअर्स, टू अवर लिसनर्स आउट हियर? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था अरिनु मैम एक्चुअली, और बहुत कोशिश की कि उसको बहुत कम वर्ड्स में कंपाइल करने के लिए। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट देर इज नो राइट एंड रॉन्ग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिजेस। और अगर आप ढूंढने निकलेंगे एक राइट पार्टनर, तो शायद ही कभी कोई मिलता है हमें ऐसा कि हाँ इट फिट्स इन ऑल दी एरियाज एंड देयर इज अ चेकलिस्ट आप साथ साथ टिक करते जा रहे हो। बट जितना तो इंटरेस्टिंग आपका कंसेप्ट और आर्टिकल मुझे लगा, उसी साथ में मैं ऐसे एक्साइटेड थी कि आपसे पूछूंगी कि वाज इट योर लव मैरिज और अरेंज मैरिज? पर्सनल है बट स्टिल आपने बहुत ही so दिल से लिखा है। so I would like to ask you, what do you think? Is it a love marriage or an arranged marriage? इट्स लव आई थिंक, बिकॉज इतना डीप लिखा है तो लव ही हो सकता है, बिकॉज तो अरेंज तो। चलिए, थैंक यू सो मच। बट मैं बताती हूँ आपको, ये अरेंज को लव पे लाना ही एक जर्नी है आपकी शादी की। कि आप अरेंज हो रहे हैं किसी के साथ, और फिर आप विद ऑल योर एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग आप उस शादी को एक लव मैरिज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी, कमिंग बैक टू, कि जब हम इस तरीके का कुछ बात कर रहे होते हैं फॉर द कमिंग जनरेशन, तो डेफिनेटली उनको ये बताना जरूरी है कि आप एक इंसान चूज नहीं कर सकते हो ये सोच के कि उसमें सारी क्वालिटीज हैं। आप उस इंसान से शादी करो जिससे आप प्यार करते हो, लेकिन वो शायद आपसे ज्यादा प्यार करता है, or in form of respect. So exchange of respect, I think, is something which one should look out for, क्योंकि शायद एज के साथ प्यार ऊपर नीचे हो सकता है और बहुत सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल होती हैं, सिचुएशन बेस्ड होती हैं। लेकिन जब आप रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की, तो मुझे लगता है वहां से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। आप एक दूसरे को सुनने लगते हो, समझने लगते हो, एंड विद टाइम आई थिंक दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मुझे लगता है शादी को वर्क करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं जनरेशन को यही बोलना चाहूंगी कि आप उसके साथ शादी करो जिसमें डेफिनेटली आपका कुछ एक अफेक्शन, एक कंपैशन हो एक जिसकी तरफ, लेकिन रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है शुड स्टे इन योर रिलेशनशिप फॉर एवर। That's really thoughtful, ma'am. And what message you would like to share from your article 7 Lee of Life? Seven Lay of Life, ma'am, as I said, it is very, very um, uh, vast area, because usually with day-to-day life हम लोग अपना we do not intercept ourselves। जब हम पूरा अपने आप को इंडल्ज किए हुए हैं अपने काम में, जॉब्स में, घर में, बच्चों में, हर जगह, तो हम ये भूल जाते हैं दिन में शायद एक बारी सुबह शाम को कभी भी ये शांति से बैठकर सोचना दैट व्हाट इज देयर फॉर मी, व्हाट एम आई डूइंग फॉर माई सेल्फ। और जब हम ये बैठकर सोचते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या कमाया इस जिंदगी में, क्या हमारी अर्निंग्स हैं, क्या हमने सीखा, और क्या हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं। बेसिकली वो हम अपनी लर्निंग और अर्निंग से ही कर सकते हैं। जो हमने खुद सीखा है वही शायद हम इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज। तो सेवन ली ऑफ लाइफ से बहुत एक एरिया ओपन अप होता है हमारे लिए, ये सोचने के लिए कि वेयर यू आर स्टैंडिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी it's it's very good topic that we are sharing our earnings and our learnings with generations। बिकॉज बहुत सारे थॉट्स मिलेंगे, जैसे कि अराउंड 2 to 6 8 पॉइंट्स हैं इस बुक में। तो वेरियस डाइवर्स थॉट्स, और काफी सारे लोग हैं, होम मेकर्स, लाइफ कोचेस, हीलर्स, हाँ, साइकोलॉजिस्ट, और वेरियस थॉट्स है कि किसी ने अपने लाइफ में क्या सीखा और क्या क्या उसने अर्न किया, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, उसके क्या सक्सेस है, क्या फेलियर्स है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। देयर इज लॉट मोर इन दिस एंड बुक्स आर अवेलेबल एग्जैक्टली। ग्लोबली। और हाँ, ऐसा है कि अगर आप मैं मिलके अगर सिंगल सोलो बुक लिखते हैं तो वो ऐसा है कि केवल मेरे थॉट्स ही किसी को पता लग पाएंगे, बट यहाँ पे 108 को ऑथर्स ने लिखा है, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग्स, थॉट्स, ओपिनियंस, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल और मैम, पर्सपेक्टिव कितना अलग होता है सबका एक ही टॉपिक के बारे में। आपका, मेरा और किसी थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव इतना अलग है। और जो
फोर्थ पर्सन उस उन तीन पर्सपेक्टिव को पढ़ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है, उनका पर्सपेक्टिव कितना डिफरेंट हो जाएगा। और फिर वो उसी में से 108। सीखने के बाद उसकी लाइफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगी, यू नेवर नो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। तो आगे बढ़ते हैं अनु अनु जी। सिंस यू हैव अ कलेक्टिव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 19 years, so what advice you would like to give to our women out here who are just planning for the financial freedom post their marriage but are unable to make it possible in their life because of any XYZ reason? So your message or advice to them via the platform of Ankakshar Miracles would be really helpful to them. Renu ma'am, I personally believe that Ankakshar Miracle is giving a wonderful platform for like maybe for everyone, but people or for females who want to have their independent identity. I think it's a wonderful platform for them as well. और जैसे आपने बोला, I personally believe, I strongly believe that every female should work for herself first, because if we as a female we are empowered and we are sustainable, then only we will be able to impart knowledge to others, our family, our children and our coming generations. तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि एज अ फीमेल सबसे पहली चीज तो हमें अपने ऊपर यही करनी चाहिए कि वी नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, because life is long and life is having different situations all the time. It will not be like जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। भगवान करे ऐसा ही हो, सब अच्छी चीजें ही आए सबकी लाइफ में। बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड you need to have your own identity in terms of have your own friend circle, have your own space somewhere, have your own people around you who can empower you, help you out with different situations, क्योंकि वो होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जब ग्लास भरा हुआ होता है तभी वो किसी की प्यास बुझा सकता है। तो अपने ऊपर काम करना हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम खुश हैं तभी हम खुशियां बांट सकते हैं, हम एम्पावर्ड हैं तो ही हम किसी और को एम्पावरमेंट का नॉलेज दे सकते हैं। तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज वंडरफुली एंड अमेजिंगली गिविंग ऑल दैट टू एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ इट। एंड इन कमिंग डेज आई थिंक बहुत ही लोग और भी जुड़ेंगे और जुड़ना चाहेंगे भी, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जिनको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आ रही है उनको भी समझ आने लगेगी कि इट इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने कहा, एक बुक लिखना एक लेवल पे डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि आपको इतने सारे थॉट प्रोसेस कंपाइल करने हैं। और एक बुक पढ़ेगा कोई एक किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, और एक बुक पढ़ेगा 108 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। you what you channelize how much knowledge you are gaining in an anthology. Like you are getting to understand 108 people saying different thing about a same topic. So I think you people are like wonderfully sharing this kind of knowledge with a lot of people out there. थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। और इसी बात पे आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि बाकी के लोग भी समझेंगे, तो जब इसके स्लॉट्स फिलअप हो गए थे तो पीपल वर रियली सेइंग कि कुछ और स्लॉट्स बाकी हैं क्या। दे वर लाइक, जब हमने पूछा था तो उस टाइम पे दे डिडंट ज्वाइन, बट बाद में जिस तरीके से एक्साइटमेंट हुआ, सारी चीजें हुई, सो अभी इसी बात पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हम लोग का स्टार्ट हो गया है, विच इज मैम अनु मैम उसका भी पार्ट है, एंड इट्स टाइटल इज फैमिली यूनाइटेड और डिवाइडेड फैमिली पजल। तो उसके भी 25 to 30 रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो गए हैं। सो जो भी जुड़ना चाहे वो हमें अंकाक्षर मेराकल्स पे डीएम कर सकता है। यू कैन गूगल अबाउट अस, मेरा फेसबुक पेज है, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, truth_of_life82 मेरा पेज है, एंड अभिषेक चित्रांश इज द इंस्टाग्राम पेज, एंड ही इज माई हस्बैंड, इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अंकाक्षर मेराकल्स। और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई भी कंसल्टेशन, इट्स अ पेड कंसल्टेशन, आप कोई भी चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। नेम करेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ, करियर ग्रोथ, जो भी आपको चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड जैसे कि मैम ने बताया कि इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, और जो एडवाइस मैम ने वुमेन्स के लिए दिया है वो उससे जो मैं समझ पाई हूँ वो यही है कि सेल्फ लव होना चाहिए, जो मिसिंग है। नॉट ओनली इन वुमेन्स, लोग अपने आप को भूल ही गए हैं। और बता दूं तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, मोबाइल एडिक्शन। बस कुछ
काम हो गया, फ्री हो गए, चलो अब देख ले थोड़ा सा, ये देख ले थोड़ा सा, रील देख ले थोड़ा सा, ये देख लेते, क्या हो गया, चलो व्हाट्सएप देख लेते, कुछ नहीं तो बस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चलो ये देख लेते, चलो ये कर लेते। सो उसके लिए अभी हम लोगों की हाल ही में बुक आई थी मोबाइल एडिक्शन, उससे आप लोग टिप्स ले सकते हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि कुछ ऐसा करिए लाइफ में, जैसे जो आपको जो पसंद है, डू समथिंग विच यू लव, आपका पैशन, जिस जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, क्योंकि आपको यूज करना है मोबाइल का, मिसयूज नहीं करना है। मैम आप कुछ सजेशन, आप कुछ कहना चाहेंगे मोबाइल एडिक्शन टॉपिक पे ऑडियंस को? मैम आपने बहुत ही राइटली यू सेड कि हम लोगों को मोबाइल का ऐसा एडिक्शन हो गया है कि जब भी हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम फोन उठाते हैं सबसे पहले। और ये बच्चों में बहुत आ रहा है क्योंकि हम एज एन एल्डर पीपल, एज अडल्ट्स, हम लोग ये कर रहे हैं। तो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही इम्पैक्ट हो रही है इससे। मैं क्योंकि अर्ली ईयर्स से रिलेटेड हूँ तो मैं ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ आजकल कि बच्चे उनका ब्रेन डेवलपमेंट तक में इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज दे आर यूजिंग सो मच ऑफ फोन। उनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। लेकिन एज वी ऑल से कि चेंजेस कैन स्टार्ट फ्रॉम होम ओनली, तो एज अडल्ट्स पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है कि हम घर में कैसी एनवायरनमेंट अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर हम खुद फोन पे हैं तो हम कैसे मना कर सकते हैं? सो व्हेन वी आर रीडिंग, चिल्ड्रन आर रीडिंग, व्हेन वी आर वाचिंग एवरीथिंग ऑन फोन, तो बच्चों को हम मना नहीं कर सकते हैं। सो एज अडल्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि हम जो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, गैजेट्स हैं, गैजेट्स की कोई रीजन होता है यूज करने का, वहीं तक रहना चाहिए। लेकिन वो हमारी लाइफ और हमारे ब्रेन डेवलपमेंट इम्पैक्ट करने लगे तो आई थिंक वी आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर हमें स्टॉप कर देना है चीजों। सो डेफिनेटली आज के एडल्ट्स को ये बहुत अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना पड़ेगा कि आप मोबाइल या स्क्रीन एडिक्शन कितना ले रहे हैं अपने साथ। सिर्फ हमें नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, वो हमारी कमिंग जनरेशन्स को इम्पैक्ट कर रहा थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर दी वंडरफुल एडवाइस। और इसी से जुड़ता हुआ मेरा अगला क्वेश्चन है, सिंस यू आर अ होम मेकर, एन एंटरप्रेन्योर, अ मदर, आई वुड है। say that you have to be there in each and every role. So above all, I would love to talk to you on the bonding of mother and daughter, as आपने एक बहुत ही प्यारी सी लाइन अर्निंग में बताई थी, that your daughter is the earning, मतलब आपकी अर्निंग है, she is the greatest earning of your life. So my question to you is that what message you would like to give to the mothers out here, so that how they can raise their daughter since her birth till her each and every stage of life? And no, ma'am, this is very important question, because as the generations are passing, the childrens need their parents to be their friends rather than any kind of bossy nature to them, or you can say the ruling nature towards them. वही आपने अभी बताया भी था कि जो बच्चे करेंगे और वही सारे लोग मतलब हम जो करेंगे वही बच्चे भी करेंगे हमें देख के। तो वैसा ही जुड़ता हुआ ये क्वेश्चन है कि मदर एंड डॉटर की बॉन्डिंग किस तरीके से रहना चाहिए, एक एडवाइस टू द मदर्स। बिल्कुल मैम। मैम आई थिंक किसी भी माँ के लिए उनका बच्चा आई थिंक एक ग्रेटेस्ट अर्निंग ऑफ लाइफ में आता ही है। तो आई एम नॉट एन एक्सेप्शन एंड नो बट दैट बीइंग अ रीडिंग टू मदर ऑफ अ दैट, आई लव दैट गर्ल। रियली। हाँ। तो हैविंग अ गर्ल चाइल्ड शायद वो थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आई have a special bonding with my mom as well. Um, I always say that I'm blessed to be her daughter because somewhere I realized in my growing up years only कि what the way I am today is because it is because of her. शायद मैं उस टाइम नहीं समझ पाई, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और अपनी लाइफ को समझने लगते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं से हमारी पर्सनालिटी क्रिएट हुई है। और वो जो लोग होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनका बहुत एक मेजर रोल होता है हमारी पर्सनालिटी क्रिएट करने के लिए। सेम आई विल से दैट माय मदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी जिनकी वजह से मेरे अंदर इतनी कंपैशन, काइंडनेस कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ बहुत चीजों की तरफ। मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ क्योंकि शायद मैंने उनसे सीखा है दैट वट एवर वी आर टेकिंग वी हैव टू गिव इट अवे एज वेल। शायद मल्टीपल टाइम्स करके तो देना चाहिए हमें जितना है। एंड कमिंग टू माई डॉटर, डेफिनेटली आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव अ गर्ल एज अ चाइल्ड बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे की, तो मैं वहीं से शुरू कर रही, बीइंग अ मदर
daughter, it is my responsibility to raise her in a way that she can contribute tomorrow towards the society. और क्योंकि एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रोल्स जेंडर बायस नहीं होते हैं, स्टिल एज फीमेल्स हमारी बहुत एरियाज में प्रेजेंस होना जरूरी है, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर। और हम ऐसे बच्चे रेज कर रहे हैं, हम ऐसी डॉटर रेज कर रहे हैं जो कि शायद आने वाले टाइम में एक और फैमिली रेज करने वाली। So, to all the mothers out there, I am just sharing my word of experience that raise a daughter like a warrior. फेरी टेल्स नहीं होते हैं लाइफ में। हमें अपने बच्चों को ऐसे ही रेज करना चाहिए कि वो आने वाली जो हमारी लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनमें they should come up with shining stars. They should not feel unsafe, unsecure or depressed in any of the situation. और ये सब चीजें हमें बचपन से सिखानी पड़ती हैं, बचपन से सीड्स सॉ करने पड़ते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्री को बियर करने के लिए। तो these are my words of advice to anybody out there, any parent of a girl child or maybe a boy child, that raise good human beings, make them good person from their heart within, so that they can run a beautiful society coming. So Thanks. This advice could be really valuable to all the mothers out here. Thank you so much, ma'am. And at last question, what was your experience with the Ankakshar Miracles, and what advice you would like to give to the budding authors, new authors, so that they could share their words to the society through the platform of Ankakshar Miracles? It is a wonderful experience, ma'am. This is the second time I'm getting myself enrolled here. So I think, as I mentioned earlier, Akshar Miracle is giving a wonderful platform to all the people out there. क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बहुत है दुनिया में, लेने वाला चाहिए। तो ऐसे ही जो लोग आसपास हैं, ज्ञान बहुत है सभी में। आज की डेट में एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंसेस आउट देयर। और अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, और उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोग सीख रहे हैं, तो आई थिंक इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती है। सो इट इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। पीपल शुड डेफिनेटली बी कनेक्टेड विद दिस प्लेटफॉर्म। आई एम completely suggesting this to all people out there who want to share their thoughts, who want to share their experiences, want to share their learning of life. So just be there and get connected. Thank you so much, ma'am. Thanks for joining in. Thanks for all the Thank you. love, respect, and the valuable advices that you give. It was a very wonderful time having you on this platform. तब तक के लिए Thank you बने so रहिए, much. जुड़े Thank you रहिए for having अंकाक्षर me too. मिराकल्स के साथ। Yeah. जल्दी मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। थैंक यू मैम, टेक केयर, गुड डे, You too. Bye bye. बाय।